Hello friends. In our previous session we will discuss about demand, what is demand, what are its basic features, and what is the difference between desire, want and need. Okay. Now in this session we are going to discuss about the factors of demand, about the determinants of demand. Determinants of demand means the basic factors upon which the quantity demanded of a commodity depends. Okay, so our first point is price of goods. The quantity demanded, basically there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. इन केस अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो करती है उसको वो लेस हो जाती है. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. ये हम आगे फर्दर डिस्कस ऑल्सो करेंगे, बट द बेसिक थिंग इज हायर द प्राइसेस लोअर विल बी द डिमांड. सेकेंड पॉइंट इज income. There is a positive relationship between the income of the consumer and the quantity demanded of a commodity. For instance, इन केस मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, सो वॉट इट मीन्स कि नाउ आई एम केपेबल ऑफ परचेजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी देन प्रीवियस वन. सो इट शोज कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है, देन क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है. Third point is price of the related goods. There are two type of goods. Number first is substituted goods and number second is complementary goods. Substitute goods, we can take an example of substitute goods like the toothpaste, Colgate toothpaste and Pepsodent toothpaste. Both are सेम वर्क, बोथ हैव सेम वर्क. दोनों का एक ही काम है, टूथपेस्ट का एक ही वर्क है. बट अगर किसी वजह से कोई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर कंपनी कोलगेट टूथपेस्ट के प्राइस को हाइक कर देती है, सो व्हाट इट इफेक्ट्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज जो कंज्यूमर होगा with limited income, so they have other options also, that is Pepsodent toothpaste or other types of toothpaste that are available in the market. Okay, so it shows कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है सब्सटीट्यूट गुड्स की, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है in case the price of a particular commodity increases. Number second is complementary goods. Complementary goods are basically those goods that are dependent on the other good, like bread and butter, petrol and automobiles. If the price of bread increases and those persons who are eating bread and butter combo, so they reduces the demand of बटर ऑल्सो. क्यों डिमांड कम कर देंगे? जब ब्रेड की प्राइस हाइक कर जाएगी, जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो लिमिट में ब्रेड को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे देन बिफोर. पहले की कंपैरिजन में ब्रेड का कंजम्पशन कम कर देंगे. जब ब्रेड का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बटर का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. सो उसकी डिमांड डिपेंड करती है ब्रेड की डिमांड पर, और ब्रेड की डिमांड डिपेंड करती है उसके प्राइस पर. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, सो what it shows that if the price of a product increases, then its complementary goods demand decreases. Now our fourth point is expectation of further increase in the price of a product. If there is a further expectation that the price of a particular commodity increases also in future, then we start holding that product in present value. We can take an example of gold. Okay, the price of gold is increasing day by day, but we know, if we came to know that the price of the gold will increase after 5 years, it's just डबल हो जाएगा. अगर हमें ये पता चल गया कि गोल्ड का प्राइस जो आज भी इंक्रीज हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है, बट अगर हमें ये पता चल गया कि जो गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर 5 years, इट जस्ट डबल, तो हम उसको आज की डेट में होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये लॉ डिमांड इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि डिमांड प्लस जाएगी या माइनस जाएगी.
Next point is effect of advertisement. Today manufacturing companies apply this practices of publicity. They endorse uh, personalities like Amitabh Bachchan, Virat Kohli, and we are emphasized with these personalities. हम इन personalities से इतना emphasize हो जाते हैं कि even the price of the product is increasing, even then we are going to purchase that commodity. Okay, now our last point is the most important factor is government subsidy. If in the budget government is announced to provide a subsidy to a particular thing, to a particular commodity, to a particular technology, so its direct impacts goes to its quantity demanded. Why? जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की सब्सिडी अनाउंस करती है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सब्सिडी टू दैट प्रोडक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सब्सिडी मीन्स गवर्नमेंट उसको टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग में और बाहर से उस चीज़ को कोई उसके पार्ट को खरीदने में सब्सिडाइज प्रोवाइड करेगा, सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करेगा, कम कर देगा उसके रेट, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कम खर्चा आएगा, तो उसके प्राइस लो हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स of demand. Okay, now we are taking another topic, that is law of demand. What is law of demand? Law of demand shows that there is inverse relationship between the quantity demanded and the price of the product. Means it simply says if the price of a commodity increases, then its demand decreases. If the price of the commodity decreases, its quantity demanded increases. This is basically a first law of purchase. This is also known as the first law of purchase. It shows that there is inverse relationship between the price and the quantity demanded. But if we want कि ये law apply करें, we must have some assumptions. What are these assumptions? That there is no change in income in the consumers, there is no change in their taste and preferences, no expectations of further change in prices, no change in the substitute goods, no change in the government subsidies. These are the basic assumptions which we should keep in mind while applying this law of demand. Okay, we are now also explain the theory of law of demand with the help of an example. In this diagram you can see that there is downward sloping curve of demand. What it shows, on the vertically we will see the price of the commodity, and horizontally we are seeing the quantity demanded of a commodity. Okay, now if अब examples के through देखिए, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, मतलब इट्स सिंपली सपोज इट्स P2, तो इसकी क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो है Q2. ओके, अब अगर इन केस इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देते हैं फ्रॉम P2 टू P1, देन इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम Q2 टू Q1 पे चली जाएगी, उसकी क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो कम हो जाएगी. लाइकवाइज इन केस उसकी प्राइस P2 से P3 पर कन्वर्ट हो जाती है, देन इट शोज उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q2 से Q3 पर शिफ्ट हो जाएगी. दिस शोज दैट द लॉ ऑफ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम left to right. Okay, now the question arises why the law of demand applies. What are the causes of its application? The first point is law of diminishing marginal utility. It states that as a consumer consumes every additional unit of a particular commodity, its marginal utility goes on diminishing. What it means in a layman language, I can help you in understanding it. Okay, for instance, कोई पर्सन चपाती खाता है, भूखा पर्सन है, चपाती खाएगा, तो फर्स्ट 2 यूनिट से उसे जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है वो मिल जाएगा. आफ्टर देन 3rd यूनिट पे वो उतना स्पेंड नहीं करेगा क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा. 4th यूनिट पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट था वो फर्स्ट 2 यूनिट्स ने कंप्लीट कर दिया. लाइकवाइज अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तो कंज्यूमर्स उसको डिमांड करेंगे, क्योंकि जिनकी बेसिक नीड है, जिनको अल्टीमेट नीड है उस कमोडिटी की, तो वो परचेज करेंगे. बट आफ्टर देन क्या होगा, उसके डिमांड स्लोली डिक्रीज होती जाएगी.
Okay, so this is the law of diminishing marginal utility that applies on the law of demand. Second point is change in income. What is change in income? If there is increase in the price of a commodity, so the real income goes on diminishing. अगर किसी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो रियल इनकम है, जो स्टेबल है, जैसे 10,000 रुपीज़ है, हमने कहा था, एज्यूम करा था कि देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम तो हमारी स्टेबल रह गई 10,000 की, लेकिन कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो गई. सो व्हाट इट शोज कि जो हम क्वांटिटी डिमांड पहले लेवल पे कर सकते थे, अब हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम तो स्टेबल है, हम खर्चा तो उतनी ही लिमिट में करेंगे. इन कंट्रास्ट, इन केस प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारी जो इनकम 10,000 है, जो स्टेबल है, जो रियल इनकम है हमारी, उसका वो बढ़ जाएगी. हम नाउ वी कैन केपेबल ऑफ परचेज more commodity in that income. Okay, number third point is substitute goods. We have already discussed what are substitute goods. In case आपकी क्वांटिटी की, जो प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो क्या करेगा, एक कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो उसके चीपर गुड्स हैं, वो उनको परचेज करने लगेगा. सो द कमोडिटी की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी क्वांटिटी जो डिमांडेड की जा रही है, उसकी वो प्लस हो जाएगी. सो द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस. A commodity that have different uses, so its demand is known as the composite demand. Okay, what it depends on price and all these things. अगर किसी commodity की price increase हो जाती है, तो उस कमोडिटी के जो डिफरेंट यूजेस है, फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक मिल्क. मिल्क से हमें घी बना सकते हैं, हम बटर बना सकते हैं, हम और कर्ड बना सकते हैं. अब इस केस में अगर मिल्क की ही प्राइस इंक्रीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे. क्यों कर देंगे? और जो उसके वेरियस यूजेस हम कर रहे हैं ना, उसकी डिमांड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस उसका हाइक कर गया. So the law of demand basically depends on four major things. Number first is law of diminishing marginal utility, income of the consumer, that includes only real income. Okay, number third is substitute goods, and number fourth is different uses of commodity. Okay, now there are some exceptions of law of demand, means where the law of demand doesn't apply. The quantity demanded increases even there is an increase in the price. Even मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इवन देन भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं देयर इज एन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. द फर्स्ट पॉइंट इज गिफन गुड. सर रॉबर्ट गिफन 19th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट थे, सर रॉबर्ट गिफन. दे हैव सेड कि जो इंफीरियर गुड्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है विद द फॉल इन देयर प्राइस, और इंक्रीज हो जाती है विद देयर इंक्रीज इन द प्राइस. व्हाट इट मीन्स, उन्होंने ये बोला था कि somehow customers think और consumers think कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, सो उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है. और अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो दे थिंक कि उनकी क्वांटिटी भी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे थिंक कि दे आर इंफीरियर गुड्स, उनमें कुछ कमी आ गई होगी, दैट्स वाई देयर प्राइस इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. So in that case, law of demand doesn't apply. Second point is necessities. There are some basic needs which we need to fulfill at every cost, like salt, sugar, dal, chawal, atta. These are the basic items, basic necessities of life, जो हमें परचेज करनी ही पड़ेंगी. इसके लिए हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते. इवन द प्राइस अगर इनकी इंक्रीज भी हो रही है, इवन देन इनकी क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो स्टेबल रहती है. थर्ड पॉइंट इज प्रेस्टिजियस गुड्स. लाइक द इंफीरियर गुड पर्सन ये सोचता है कि जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और
प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. लाइक वाइज प्रेस्टिजियस गुड्स में ये सोचा जाता है कि इन केस देयर प्राइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट मीन्स इफ वी आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, सो इट इज अ प्रेस्टिजियस, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर अस टू परचेज दैट थिंग. हमारे लिए प्रेस्टीज का इशू हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि वी हैव the product even the price of the commodity is increasing. For example, diamond is not a simple thing जो हर कोई पर्सन परचेज कर सकता है इन डे टू डे लाइफ. सो जो पर्सन डायमंड परचेज कर रहा है, डायमंड की प्राइस डिपेंड करती है बहुत फैक्टर्स पे और उसकी प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है, उसकी फिनिशिंग पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है. सो जैसे उसकी प्राइस, जितना महंगा डायमंड होगा उतना ही जो पर्सन उसे परचेज कर रहा है, देयर प्रेस्टिजियस इश्यू फॉर दैम टू परचेज इट. वो शो ऑफ करते हैं कि वी हैव अ डायमंड, वी हैव सच अ फाइन डायमंड वी हैव. सो प्रेस्टिजियस गुड्स आर द गुड्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई. We have also discussed a point of expectations of further change in price. Law of demand assume करता है that there should be no change in the price of the commodity in future. So ये condition, ये law apply उस case में नहीं करेगा जहाँ where there is an expectation of further change in price. If the price of the commodity is increasing and there is also an expectation of further change in price, इस कंडीशन में दिस लॉ डजंट अप्लाई बिकॉज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन द प्राइस of that commodity. Okay, I hope you like this session, and if you have any query, please write in the comment section and like, share and subscribe to my channel also. In our next session we will discuss about the elasticity of